کان جوانی مزن کان بچپنس مزن کان بڑھاپس مزن کان بیماریوں سے کان لڑگے سے کان بیٚیہِ کینٛہہ کُنہِ وقتہٕ کُنہِ اسباب سے چھِ یہِ دُنیا ییٚتہِ ترٛاوُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ گژھُن قابل مبارکباد چھُ سُہ شخص ییٚمۍ سُنٛد خاتمہٕ ایمانس پٮ۪ٹھ گژھِ ایمان پر جس کی موت آئی ایمان کی حالت میں جس کی موت آئی کلمے والی موت جس کو آئی وہ مبارکباد کا مستحق ہے اور افسوس ہے اس شخص پر جو بے ایمانی کی حالت کے اندر جس کا انتقال ہوا ایمانس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ خاتمہ گژھِ اِنسان سُنٛد ایمانس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ مرِ اِنسان خۄدا صٲب چھُ وَنان فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز جس کو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت کے اندر داخل کیا گیا وہ شخص کامیاب ہے اب جہنم سے کون بچے گا جنت کے اندر کون جائے گا اس کا دار و مدار ایمان پر ہے ایمان ایسے تو جنت کے اندر داخلہ ہوگا جہنم سے چھٹکارا ہوگا اور اگر ایمان نہیں ہے اللہ میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے تو جس کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہوا تو وہ ناکام ہے ابد الآباد کی جہنم اس کے لیے اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون اے انسان کیا ژٕ چھُکھا سونچان ژٕ چھُکھ مےٚ عبثٕے بنومُت ژٕ چھُکھا سونچان کہ بس ژےٚ چھُے نہٕ مےٚ رِشن یُنٕے نہ عبث چھُکھ نہٕ ژٕ فضوٗل چھُکھ نہٕ ژٕ بیکار چھُکھ نہٕ ژٕ کُنہِ مقصد سے چھُکھ نہٕ ژٕ بنومُت انسان چھُ معموٗلی کانٛہہ چیٖز بناوان دُنیاہس منٛز معموٗلی ژورن آنن ہِنٛز رۄپیہِ ہٕنٛز چیٖز چھُ بناوان کانٛہہ اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے ایک ویلیو ہوتی ہے بنانے والے کے پاس سٕژٕنۍ چھِ واریاہ لۄکٕٹ ژور آنہٕ ٲس میلان وۄنۍ چھِ رۄپیہِ میلان تَوٕ چھُ ویلیو اکھ قیٖمت تٔمِس بناوان وٲلِس نِش بیکار چھَنہٕ سۄ کوٚنٛڈ آسہِ کڑُن ترٛوپ آسہِ دیُن تتھ سٕژِ بغیر یی نہٕ سُہ کوٚنٛڈ کڑنہٕ سُہ ترٛوپ دِنہٕ یی نہٕ تتھ سٕژِ بغیر تتہِ لگہِ سۄے سٕژن تتہِ اگر أسۍ 3 لچھو ہُنٛد موبایل انو دپو اَو سۭتۍ دِمو ترٛوپ لگہِ نہٕ 10 لچھو ہٕنٛز گاڑِ یی تہٕ تتہِ کر نہٕ سۄ کٲم 10 لچھو تتہِ چھِ سۄ بیکار 10 لچھو واجی گاڑِ جہاز کروڑن ہُنٛد چھُ بیکار تتہِ تتہِ چھُ کارآمد سہے 8 آنن ہٕنٛز رۄپیہِ سٕژن سۄے چھِ تتہِ کارآمد کانٛہہ سا چیٖز چھِ دُنیاہس منٛز فضوٗل چھنہٕ کانٛہہ تہِ نہٕ ہر اکھ چھِ کانٛہہ مقصد سۭتۍ ییٚلہِ یِمن ہٕنٛز ییٖژاہ ضروٗرت چھِ ییٖژاہ یِم ضروٗری چھِ یِہُنٛد مقصد چھُ اکھ سٕژِ ہُنٛد رۄپیہِ ہٕنٛز چیٖزُک ییٖژاہ اکھ مقصد چھُ تہٕ خۄدا صٲبن بنوو یہِ انسان کوتاہ قیٖمتی بنوون یہِ انسان کوتاہ قیٖمتی وٕنکٮ۪ن اگر اکھ نابینا شخص چھُ تٔمِس چھُ نظرِ یِوان کینٛہہ تہِ نہٕ سُہ اگر ونان چھُ مےٚ وٕنکٮ۪ن ژےٚ چھے 2 أچھِ بہٕ دِمے ژےٚ 20 لچھ دِمے ژےٚ بہٕ 1 کروڑ دِمے ژےٚ بہٕ ژٕ کڑُن اکھ أچھ دِن مےٚ
بہٕ گژھٕ تیار تتھ تیٖژاہ قطعن گژھٕ نہٕ بہٕ تیار تتھ تیٖژاہ کروڑن ہٕنٛز اکھ ٲس بیٚیہِ ٲسۍ سۭتۍ وٕچھِ بہٕ مگر اکٕے ٲس شےٚ کروڑ رۄپیہِ چھُ سُہ مےٚ دِوان مگر بہٕ چھُس نہٕ دِنس کِس تیار کینٛہہ تہِ کانٛہہ دپہِ اچھا مےٚ چھِ چٲنۍ زٮ۪وِ ہٕنٛز واریاہ ضروٗرت ژٕ زُوٮ۪کھ زٮ۪و بغیر بالکل ٹھیٖک ٹھاک کینٛہہ گژھی نہٕ ژےٚ ژٕ دِ مےٚ زٮ۪و ذرا برونٛٹھ کَنہِ پٮ۪ٹھ ژٔٹِتھ بہٕ دِمے 20 لچھ دِمے 15 لچھ دِمے کانٛہہ شخص گژھِ نہٕ تیار زٮ۪و دِنس کِس یِم چھِ ظٲہری چیٖز اندرون کیا کیا چھُ خدا صٲبٕنۍ کاریگری کیا کیا چھِ أنٛدٕرۍ کِنۍ انسان کے وہم و خیال سے باہر تہٕ ییٖژاہ یہِ کاریگری چھِ خدا صٲبن أمِس حضرت انسانس پتہٕ کٔرمٕژ تہٕ کیٛاہ یہِ چھا فضوٗل یہِ چھا صرف دُنیاہس منٛز کماونہٕ آمُت کھٮ۪نہٕ کِژن آمُت بینک بیلنس بناونہٕ کِژن آمُت تجارت کرنہٕ آمُت ملازمت کرنہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد کانٛہہ مقصد نہ خدا صٲب چھُ دپان یہِ چھُنہٕ مقصد أمۍ سُنٛد سُہ چھِ کھینچان أمۍ سُنٛد مقصد کینٛہہ تہِ نہٕ مزدوٗر کرٕنۍ چھنہٕ مقصد أمۍ سُنٛد کینٛہہ تہِ نہٕ یہِ چھِ ضروٗرت اکھ ملازمت کرٕنۍ بینک بیلنس بناوٕنۍ یہِ چھنہٕ کیٛاہ ضروٗرت مقصد چھُنہٕ یہِ أمۍ سُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خدا صٲب چھُ قرآنِ پاکس منٛز ونان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے میری اطاعت کرے میری فرما برداری کرے انی جاعل فی الارض خلیفہ قرآن میں خدا صاحب میں نے انسان کو نائب بنایا نائب کا مطلب اللہ رب العزت کے احکامات کو دنیا کے اندر وہ لاگو کرے نافذ کرے اپنے اوپر نافذ کرے دوسروں پر نافذ کرے اب وجہ سے بنو میں انسان تخلیق انسانیت کا مقصد سب سے بڑا یہی انی جاعل فی الارض خلیفہ بت اوسُس نہٕ تُہۍ ٲسِو نہٕ کانٛہٕے اوس نہٕ آدم علیہ السلام یُس سون جد امجد چھُ تِم تہِ ٲسۍ نہٕ تہنٛدۍ بناونہٕ برونٛٹھ ونیو خدا صٲبن فرشتن کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں انسان کو بنا رہا ہوں تمہاری کیا رائے ہے کیا مشورہ کیا کہتے ہو تم کیوں بنا رہا ہوں اللہ نے فرمایا میرا یہ نائب بنے میرے احکامات کو یہ دنیا کے اوپر نافذ کرے اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے یہ نماز پڑھے یہ روزہ رکھے یہ حلال کھائے یہ حرام سے اجتناب کرے یہ ناجائز چیزوں سے اجتناب کرے وغیرہ جتنی بھی چیزیں کہ ان کا حلال ان کا استعمال کرے حرام سے بچے اس لیے میں اس انسان کو پیدا کر رہا ہوں یہ اس کا مقصد ہے تخلیق کائنات کا تخلیق انسانیت کا انسان کو بنانے کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العزت کی اطاعت اللہ رب العزت کی فرما برداری اگر یہ انسان اپنے مقصد کے اندر پورا اترتا ہے کھرا اترتا ہے کہ جس مقصد کے تحت اسے بنایا گیا اللہ رب العزت نے پیدا کیا اتنا بہترین ڈھانچے والا اتنا بہترین جسم والا اتنا بہترین دماغ والا اتنا بہترین عقل والا چلنے والا پھرنے والا بولنے والا معافی زبیر اپنے اندر کو ظاہر کرنے والا گپن چھ ظاہر ونان کس کی ملج تراش ملج بچ میں چھ بخار میں چھ یہ کیا چھ ونان گپن مور کوتا خوبصورت جانور چھ لیکن ظاہر ون یم کت بے پرند کہتے کہتے خوبصورت ژڑِ وغیرہ سارے جانور ظاہر ون یم کت یہ دس حضرت انسانس خدا صوبن کہ ہے ژٕ کر سا پنن اندرون ظاہر ژٕ چھُکھ لۄکُٹ تہِ تیٚلہِ تہِ چھُ ونان یہِ مےٚ چھُ کلس دود مےٚ چھُ یٔڈ دود مےٚ چھُ زنگن دود یہ اپنے ظاہر ضمیر اپنا جو اندر تھے اس کو ظاہر کرنے کی صلاحیت عقل دے دی دماغ دے دیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی دیکھنے کی صلاحیت دے دی اچھے اور برے کی تمیز کی اس کو صلاحیت دے دی اتنا بڑا انسان جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا اس کو ایک مقصد کے تحت اگر اس مقصد کے تحت یہ چلتا ہے اس مقصد پر یہ اترتا ہے مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے یہ اللہ کا محبوب بن کر کے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز یہ انسان کامیاب ہے ہم نے کامیابی کا دار و مدار کیا رکھا پونس گژھن آسن بینک بیلنس گژھِ آسن ملازمت گژھِ آسن روپیے گژھن آسن ملازمت کو حاصل کرنے کے لیے پیسے کو حاصل کرنے کے لیے
क्या न क्या ये इंसान करन, हराम और हलाल एक कर देता के, जायज और नाजायज एक कर देता के, बाई से चु लड़ाई चुवन, मैल से चु लड़ाई चुवन, रिश्तेदारन से चु कता ताल्लुक, बाबा शुलाइनी वतन, नेचवन चु ठुकन अलग तड़ित, आक यानी ठुकन चु लावारिस तड़ित नेचवन पन्ने सकन, बोको चु पासन खातर पन्निस मैलिस ठुकन पन्ने घर के चंके। यम हालात केस गवन में कामयाबी चाहती है, ये कामयाबी नहीं है। अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है, अल्लाह का फरमान बिल्कुल सच्चा है, अल्लाह का कौल, अल्लाह की कसम जरा बराबर भी उसमें गलत नहीं हो सकता। ये कोई कामयाबी नहीं है। पैसा जमा करना, मुलाजमत करना, बैंक बैलेंस बनाना, चौधराहट अपनी बनाना और अपना वो दबदबा कायम करना, अपनी सल्तनत कायम करना, ये सब नाकाम है। ये मुख्तसर की जिंदगी के लिए है। 60 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी, 90 साल की जिंदगी के लिए तो ये चल सकता है, लेकिन अबदुल आबाद की जो जिंदगी है, जहां अरबों खरबों साल, जिसकी सुबह तो शुरू होगी लेकिन उसकी शाम नहीं होगी, जिसकी सुबह तो शुरू होगी लेकिन उसकी शाम नहीं होगी। असल कामयाबी वहां की कामयाबी है, वहां फमन ज़ुहज़िका अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, उसके अंदर जो शख्स कामयाब हो गया, जहन्नम से जिसको बचा लिया गया, जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया। अल्लाह फरमाते कि ये आदमी कामयाब है। और जिसके जो यहाँ पर जन्नत के अंदर दाखिल ना हो सका, जहन्नम के अंदर चला गया, वो नाकाम है। भले दुनिया के अंदर वो अरबपति था, भले दुनिया के अंदर वो खरबपति था, भले दुनिया उसकी गुलाम थी, उसकी मुट्ठी के अंदर थी, दुनिया का पूरा पैसा उसके पास था, लेकिन अल्लाह की कसम बेईमान होकर के अगर मरा तो वो नाकाम के, खसारे के अंदर के, अबदुल आबाद की आग के हवाले है। तो कामयाबी, इस कामयाब होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है, इसी मकसद के लिए। यही मकसद के हम किस तरीके से कामयाब हो जाए। एक तालिब इल्म को 10 महीने दिए जाते के, 12 महीने दिए के, वो तैयारी करता है। सोचिन तालिब इल्म को इम्तिहान नहीं लिया जाता है, 8वीं मज द्राव रिजल्ट द्राव पास तो 9वीं रिजल्ट का इम्तिहान कार आसिन 15 2 बाद छा युत्यु गसन ना, तमिश दिवन कोत अख वरिश तमिस तालिब इल्म को दिया जाता है, उस स्टूडेंट को 1 साल दिया जाता है। इस साल के अंदर बेटा मेहनत कर ले, इस साल के को कामयाब बना, इस साल के अंदर पढ़ ताकि तो आगे कामयाब हो जाए, पास हो जाए। अगर इस साल के अंदर इस तालिब इल्म ने मेहनत नहीं की, इस साल के अंदर इस तालिब इल्म ने पढ़ा नहीं, इस साल को तालिब इल्म ने फजूल समझा, इस उम्मीद पर बुजुर्गों, जिस उम्मीद पर मैं और आप जी रहे क्या आज, अगर इस उम्मीद पर यह तालिब इल्म बैठा रहा करम मेहनत किया तीन पढ़म न किया तीन कार इम्तिहान दन नकल करित गस कामयाब। पतिल इम्तिहान आव रोंडर आयस अमिस बनिया ने नकल करी किया तीन फेल गो पच्ची परेशान गसन, बाबस कितिया ठाव अमस कितिया ठाव घर के क्या वनवे दोस्तन क्या वनवे मे टेंट कोत गई मे फलासफरी कोत गई मे खत्म सोच वनन अद ओहो रिजल्ट ऐसे न द्रोम सोच वनन रिजल्ट केस तो डिक्लेयर कैसे डिक्लेयर गसनु नहीं रिजल्ट कैसे न नियर नो वो इतना परेशान, क्योंकि उसने भरोसा और तकिया किया था किस चीज पर, इम्तिहान समझ करो नकल तो गसो कामयाब पास में आरो। लेकिन जब राउंडर आ गए उसको नकल करने नहीं दी, मौका नहीं मिला, खाली पेपर ब्लैक नो सीधा जो सफेद आया था वैसे सफेद यहां से कर गया तो 0। तो जिस तरीके से ये नाकाम थे मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है 70 साल की, 60 साल की, 90 साल की जिंदगी दी है, 40 साल की जिंदगी दी है। अगर हम भी इसी उम्मीद पर बैठे रखे जैसे कि मेरा और आपका यही हाल है, वही लोकटू छु वही क्या छु वही छु सजीहनी वही छु मस गो 5 वेरन यू मस गो 3 वेरन यू वही गो सजीहन वेरन यू ये बुढ़ गसो करो तोब ये बड़ो अद करो तोब बस तोब कर खुदा सोब कर सारी गुनाह माफ। लेकिन मेरे भाइयों मौत
जिस तरीके से राउंडर ने वहां पर मौका नहीं दिया था इस तालिबे इल्म को नकल करने के लिए, मौत भी अब यहाँ पर मौका नहीं देगी तौबा करने के लिए। ये कब आ जाएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, हमें इसका कोई पता नहीं है। जिस उम्मीद पर मैं और आप जी रखे के अल्लाह की कसम ये गलत उम्मीद लगा करके बैठे जिना दपन बुढ़ापस मंजी हंसा मारो नो कैत मारो बुढ़ापस मंजा। कितने नौजवानों को अपने हाथों से हमने दफन कर दिया, कितने बच्चों को हमने अपने हाथों से दफन कर दिया। हाँ, अभी जो मैयत हमारे सामने नौजवान, ना कोई बुढ़ापा के, कुछ बिल्कुल अभी मासूम उम्र, क्या ये भी बुढ़ापे की उम्मीद? मेरे भाइयों, अगर बुढ़ापे की उम्मीद लेकर के हम बैठे, अल्लाह की कसम मौत कब आ जाएगी, कब पकड़ कर लेगी, किस हाल के अंदर मौत आ जाएगी कोई पता नहीं। सुना कुचन दबन से ईमान पर मौत आएगी। ईमान पर मौत कैसे आएगी? उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जिंदगी दी, इसके अंदर बनाओ, जैसा करोगे वैसा बोओगे। ऐसे वो सार भी कुकड़े आ गए चना मकई वो मज हाँ पातिर हारो दिए इस लोन वो कनक तमधो लोन कहाँ ती कनक मकई चे वो मज मकई तमधो लोन तमधो देव काम बुलोन में कनक बुलोन में गाय ना सचत मकई वो मज कुकड़ी चत वो मज यह है खसा पे लोन मकई पे लोन। तो जिस तरीके से मेरी जिंदगी गुजर रही है, जैसा मेरा उठना के, जैसा मेरा बैठना के, जैसा मेरा चलना फिरना के, अल्लाह की कसम मौत भी वैसे ही आएगी, ऐसी ही मौत आएगी। सोचो कि ना रुस मौत ही रुस मौत सिर्फ मंगने से दान न किए होते हैं। ये फसली की शेष दपन रुस फसल गस बने ताकि शो एस ब्योल ती रुत आनन ताकि शेष मेहनत ती रुस करन ताकि दान ती तेट लागन ताकि फसल गस रुस नेरन खाद ती से इस्तेमाल करन बेके काम ती से इस्तेमाल करन फसल गस रुस नेरन। अगर यस उम्मीद तट इस हमो अच्छुन काम जो मकसद नहीं के अल्लाह की कसम उसको हमने लाजिम पकड़ रखा के, और जो मकसद के उसको हमने छोड़ दिया। रिज्क का वादा तो अल्लाह ने ले लिया के रिज्क तुम्हें दे दूंगा, तुम कहीं भी रखो तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा मैं। लेकिन आज की शेष क्या क्या तरकीब सोचन, क्या क्या तरकीब करन, क्या क्या अनुशेष आज की संकारन। हाँ तेल शेष रुस फसल नेरन अगर इस बेमो सब करे दांदी लागू न किया होते न खानो इन जमीन किया होते न अत उम्मीद कर बेमो न सब फसल हसन नेर रुस साइन वजह साइन जमीन नेर रुस फसल छा युथ अत उम्मीद कर बेवन का कहाँ चुन बेवन कि शब्दात करे न गसो वज मंज न लागो दान न करो क्या तीन सब करे पादो न सा अस्त्राय रुस फसल, ऐसा कोई भी नहीं। तो अच्छी फसल की उम्मीद के लिए आप 3-3 महीने 4-4 महीने मेहनत करते हो। तो जब ईमान मौत जो आपकी जिंदगी का जो नतीजा है आपकी मौत, तो अगर आप उस पर उम्मीद लेकर के बैठेंगे, मैं और आप उम्मीद लेकर के बैठे हमारी मौत अच्छी आनी चाहिए, बाबा ये गलत ख्याल है। हम अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें, मेरे नौजवानों मेरे बुजुर्गों, हम अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें। कहते हैं सैर नौजवान दिख घर चढ़ द्राई, आज उमूमन ये बीमारी है दीन से जो बेजारी है ना, दीन जब अपनी जिंदगियों के अंदर नहीं है, इस्लाम अपनी जिंदगियों के अंदर नहीं है, कलमुच पढ़मुत ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़मुत ऐसे बाबन तिश थोमुत मुसलमान नाव बांग तिशा कानस मस पढ़मत खतना भी किया के बचपन के अंदर, वो सुन्नत भी अदा की 100 किया, लेकिन बस उतई थो ऐसे ईमान तो इस्लाम बिल्कुल उतई था ब्रोट में किए होते हैं। 25 नौजवान की जिंदगी कितन हालन में से गुजरन दौरे खासिर के अंदर अल्लाह माफ करे, नशाओं के अंदर मुब्तला के, नमाज से कोसों दूर के, इबादतों से कोसों दूर के। हर गांव के अंदर हम जब सर्वे करते के, मुआयना करते के, मालूमात करते के, पता चलता के 50% नौजवान जो है नशाओं के अंदर मुब्तला के, 80% नौजवान 80% लोग नमाज से दूर के, और इतने लोग बेवुजू के बेगुसल हुआ करते के।
नशे की हालत के अंदर धुत के शराब पी करके, अल्लाह की कसम, गाड़ी के अंदर बैठे के म्यूजिक हाई लगाया हुआ के कुफरिया वो गाने बज रहे के जिसके अंदर अल्लाह की खुदाई का इनकार किया जा रहा है, जिसको सुनने से, जिसको गुनगुनाने से इंसान ईमान से निकल जाता के 2 कदम गए ब्रोट वही गुनगुनाहट थी। नशे के अंदर धुत थे, कानों के अंदर वो गाने बज रहे थे हराम के, कुफरिया कलमे के, गाड़ी पलट खा गई, नीचे गिर गई। तो बताओ बाला किस चीज पर उसकी मौत आई? तो क्या ईमान पर मौत आई? जब कलिमा कुफरिया के गाने कानों में सुनते ही, अगर ड्राइवर हजरात यहाँ पर मौजूद के, खुदारा अपने ईमान की भी हिफाजत करें और जो आपकी गाड़ी के अंदर सवारियां बैठी है उनके भी ईमान की हिफाजत करें। वरना उमूमन ऐसे गाने बजाए जाते हैं गाड़ियों के अंदर जिसके अंदर कभी वो जो उनके आशिक़े मजाजी होते हैं उनको खुदा का दर्जा दिया जाता है, अल्लाह से ऊंचा कर दिया जाता है और अल्लाह को घटा दिया जाता है। फिर ये बोजन, ये मस्त आसन अति मजन, पान तिच वंदन रोजन मस्त, हाँ। फिर आगे चल करके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, खाई के अंदर गिर गई, हाँ। पचिदवन नाज फसो बोलतो खत्म चुपाड़ून, हाँ, सोचतो शुड़ खत्म चुपाड़ून, ये चुकारून तो हो चुकारून, न्याज बनाऊन। अल्लाह की कसम, कहाँ वो न्याज काम आए? नौजवान, कहाँ वो खत्म काम आएगा? कहाँ वो हाजी साहब की दुआ काम आएगी? जब ईमान पर ही मेरा खात्मा नहीं है, कलिमे पर ही मेरी मौत नहीं है, शराब की हालत के अंदर मौत आ गई, नशे की हालत के अंदर मौत आ गई, बगैर गुसल के था। आज अक्सर नौजवान नमाज पढ़ो, नमाज पगा तेर पढ़े ना, आज क्या प्रॉब्लम है? जरा चुन पालो ठीक। अगर इसी हाल के अंदर मौत आ गई तो क्या होगा? सोचे मेरे नौजवानों, सोचे मेरे बुजुर्गों, सोचे। इस उम्मीद पर मत जिए कि तौबा करेंगे, तौबा करने से गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, ये तौबा की उम्मीद पर जीना ये ऐसा ही है जैसे कि आप उम्मीद लेकर के बैठे हो इस कारण क्या तीनों बाजमस का फसल रस नहीं आ रही। तो अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, इस जिंदगी के अंदर हम वो आमाल करें जिस आमाल की बिना पर मौत के वक्त भी कलिमा हमारी जबान पर हो। वो आमाल कतअन न करें, कतअन वो आमाल करें कि मौत के वक्त हमारी जबानों पर कलिमा कुफरिया हो। जैसे कि हमारे हजरत एक वाकया हर जनाजे के अंदर सुनाते कि मौत के वक्त खात्मा किस तरीके से हुआ। तो ये जिंदगी को भाइयों कामयाब बनाने के लिए शर्त ये है, नौजवानों से खुसूसन में मुखातब हूं, अपनी नौजवानी की कदर करें। आज आपके दीन को, आपके ईमान को लूटने के मुतअद्दिद असबाब मार्केट में आ चुके हैं। प्लानिंग हो रही है आपके ईमान को सलब करने की। बड़े बड़े कमरों के अंदर, बड़े बड़े हालों के अंदर आपका ईमान आपसे कैसे सलब किया जावे, किस तरीके से बेईमान आपको मारा जाए, किस तरीके से कुफ्र पर आपकी मौत हो जावे, इसके लिए बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है। और मेरे जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर बैठे हुए, वो भी अपनी औलाद की फिक्र करें, खुसूसन अपनी बच्चियों के ईमान की फिक्र करें। इस दौर के अंदर अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों के ईमान की फिक्र करें। आज इनके ईमान को सलब करने के लिए, इनके ईमान पर डाका डालने के लिए और इनको बेईमान बनाने के लिए अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हालात और कारगुजारियां सामने आती है, दंग हो रह जाता है इंसान, पाँव के नीचे से मिट्टी निकल जाती है और ये सोचने पर मजबूर शायद कि मेरी बेटी भी आज महफूज है या महफूज नहीं है। जो आला तालीम के नाम पर आप इन बेटियों को अपने घरों से दूर भेज देते थे, उनकी फिक्र नहीं करते थे कि आला डिग्रियां हासिल करेंगी, आला तालीम हासिल करेंगी, लेकिन ये फिक्र नहीं है कि इसका ईमान महफूज रहे या ना रहे, किस तरीके से रहेगा, इसकी अगर फिक्र नहीं है
तंजीमें इसके पीछे पड़ी हुई है। कितनी कारगुजारियाँ, कई लाख, 3-3 लाख उम्मत मुस्लिमा की बेटियां गैर मुस्लिमों से शादी रचा रही है। वो क्या है, उन्हें नौकरियों का लालच दे करके, उन्हें पैसे का लालच दे करके, उनको ईमान से बेजार, दीन से बेजार करके उनको उनके अपने मजहब के अंदर दाखिल करके ईमान से फेर दिया जा रहा है। और उनकी कोख से जन्म लेने वाला जो अब्दुल्ला होना चाहिए था, जो मूसा और ईसा और मोहम्मद होना चाहिए था, अल्लाह की कसम उनकी कोख से अब जन्म लेने वाला मोहम्मद और अब्दुल्ला नहीं बल्कि किसी और नाम का पैदा हो रहा। लिहाजा खुदारा नौजवान अपने ईमान की फिक्र करे, कोशिश करे मेरी कोई नमाज न छूटे, कोशिश करे मैं नशा के अंदर मुब्तला ना हो, कोशिश करे कहीं भी को किस तरीके से मेरा ईमान सलामत रहे। और वालिदैन अपने औलाद की फिक्र करें, किस तरीके से मेरी औलाद हकीकी मानों के अंदर मोमिन रखे, ईमान वाली रखे, ईमान पर इसका खात्मा हो जावे। मेरी बेटी किस तरीके से महफूज रखे, मेरा बेटा किस तरीके से महफूज रखे, इसकी फिक्र करें। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जिंदगी दी है। अगर इस जिंदगी को हमने कामयाब बनाया, अल्लाह फरमाते हैं फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी फकत एक धोखा है और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। ये धोखे का घर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये धोखा देती रहती है इंसान को, अब ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। ये धोखे के अंदर पढ़ पढ़ कर अचानक मौत आ जाती है तो बस खत्म हो जाता है, इसका नामो निशान बाकी नहीं रहता है। फिर आखिरत की जिंदगी के अंदर इम्तिहानात शुरू हो जाते हैं। वहां हम कहेंगे, जब हम वहां पहुंचेंगे ना उस दुनिया के अंदर, यहाँ तो अल्लाह की कसम हकीकी मानों के अंदर मेरी और आपकी आंखें बंद है। बहुत सारे लोगों को यूं लगता है, जो लोग आते हैं कभी कभार जनाजे के अंदर आते हैं, जिन्हें ईमान से और दीन से कोई सरोकार नहीं है, 5 वक्त नमाज के पाबंद नहीं है, जो सिर्फ या तो जुमा के नमाजी होते हैं या ईदैन के नमाजी होते हैं या सिर्फ जनाजों पर हाजिर होते हैं। यहाँ ये मौलवी बोलता है और इस मौलवी की बातें इसको बड़ी तंग करती है, इसको बड़ा गुस्सा आता है कि ये मौलवी सिर्फ आखिरत 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 कह रहा है। अल्लाह की कसम मौलवी को इससे कोई फायदा नहीं है कि भाई मैं तुम्हें कहूँ भाई आखिरत के अंदर ये होगा और तुम ईमान पर चलोगे तो मदरसे वाले मेरी तनख्वाह 20-25 हजार कर देंगे या दुनिया वाले मुझे सलाम करें। अल्लाह की कसम मेरा कोई फायदा नहीं है। हाँ ये फायदा है कल क़यामत के अंदर जब आप जन्नत के अंदर चले जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे, मुझसे खुश हो जाएंगे कि मेरे बंदे की बिना पर इतनी उम्मत जन्नत के अंदर जा रही है। मेरी उम्मत खुश हो जाएंगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर हम नहीं समझे, नहीं हमने ईमान पर सही साबित रखे और अगर कुफ्र पर खातिमा हो गया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख होगा, मुझसे भी दुख होगा, आपसे भी तो दुख, उनसे भी दुख होगा, आपसे नहीं कहूंगा उनसे भी दुख होगा जिनका ईमान पर खातिमा नहीं होगा, उनसे भी दुख होगा कि भाई मेरी उम्मत होकर के जहन्नम के अंदर चला जा रहा है। अल्लाह के रसूल के आंसू निकल रखे होंगे और मुझ पर दुख इसलिए होगा कि भाई ये जानता था इसने क्यों नहीं पहुंचाया था, ये जानता था इसने क्यों नहीं दीगरों को पहुंचाया था, इसका भी मेरे नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख होगा। इसलिए ये मैं कह रहा हूं ताकि आपसे भी मैदान महशर के अंदर मोहम्मद अरबी खुश हो जाएं जब आप उनके पीछे पीछे चल करके जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, मुझसे भी खुश हो जाएंगे। इसकी वजह से इतनी कसीर जमात जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगी। इसलिए ये मौलवी बोल रहा है, वरना दुनिया का अल्लाह की कसम कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। उन लोगों को तो बड़ी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तंग आते ये बातें सुन करके। लेकिन जब यही कब्र के अंदर पहुंचेंगे और जब यही आखिरत के अंदर पहुंचेंगे, वहां ये कहेंगे रब्बना अखरिजना मिनहा नअमल सालिहा गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। रब्बा एक बार यहां से निकाल दे, एक मिनट के लिए निकाल दे, रब्बा मोहलत दे दे, हम दुनिया के अंदर जाकर के अच्छे आमाल करेंगे, रब्बा तुझे मानेंगे,
रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। वहाँ कब्र के अंदर कहेंगे चीख चीख करके, कहेंगे रो रो करके, अखरिजना मिनका नअमल सालिहा, रब्बा निकाल दे, मोहलत दे दे, भेज दुनिया के अंदर कि हम तेरे अच्छे आमाल करेंगे, हम तेरी खूब इबादत करेंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं उनका ये हसरत फकत हसरत ही रहेगी। कब तक? हत्ता यलिजल जमलो फी सम्मिल खियात, कब तक? ये जो सुई का नाका होता है सिलसन पोयत आसन या पैर पंच तारन दपन, जब तक ये एक हाथी, बड़ा हाथी और बड़ा ऊंट इस सुई के नाके में से बोट ऊंट ही अन्न अगर वो लक्ष्य सिलसी पैव में से अगर नेरे तो इतिहास नेरू जहन्नम मंजर है का नेरे है का सिलसी में ऊंट नेरे, हाँ मोच हेकन नेरे, हाँ मोचनी बट क्यों में हेकन सिलसी पैव में नेरे, वो जो सुई का सुराख होता है तो ऊंट का कहाँ से निकलना होगा। अल्लाह फरमाते हैं जब ये महाल के ए इंसान जब दुनिया से चला जाएगा तो दो ही जिंदगी होगी, या तो जन्नत की जिंदगी है या जहन्नम की जिंदगी है। जन्नत की जिंदगी से भी नहीं निकाला जाएगा और जहन्नम की जिंदगी से नहीं निकाला जाएगा। जहन्नम ये अजाब ही अजाबात है, खाने का भी अजाब, पीने का भी अजाब, सोने का भी अजाब, आग का भी अजाब और सर्दी का भी अजाब, तरह तरह के अजाबात के अल्लाह का कुरान इन अजाबात से भरा पड़ा हुआ है। और जन्नत के अंदर अल्लाह की नियामतें इतनी कसीर है, अल्लाह का कुरान पढ़ा है, पढ़ो सूरह रहमान तर्जुमे के साथ पढ़ो, तफसीर के अंदर पढ़ो, तफसीर के साथ ज़वाता अफनान हाय हाय हुरुन ईन हुरुन मकसूरातुन फिल खयाम, क्या अल्लाह कह रहे हैं कअन्नहुन्नल याकूत, जान कितना मजा, क्या क्या नियामतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत के अंदर एक ईमान वाले के लिए रखी है। मेरे भाइयों ये जहन्नम से छुटकारा और जन्नत के अंदर दाखला ये ऐसे हासिल नहीं होगा। इसके लिए ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी को कामयाब बनाएं। रोटी अल्लाह तुम्हें देगा, नौकरी अल्लाह तुम्हें देगा, रिज्क तुम्हें अल्लाह देगा, ये अल्लाह का वादा है, ये गलत नहीं हो सकता है, ये सब मिलेगा। हाँ ईमान तुम्हारे अपने से तुम कोशिश करोगे तो अल्लाह ईमान पर तुम्हारा खात्मा फरमाएगा, वरना अगर हाथ पे हाथ बैठे डरे रहे हम तो पता नहीं किस तरीके से मेरा और आपका खात्मा होगा। अल्लाह ताला हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमाए। जब मौत आ जाए तो कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़बानों पर हो, मोहम्मद अरबी हमसे राज़ी हो। आमीन व मा अलैना।